students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is production of food. Things to learn. Food production, farming in India and stages of farming. तो basically आपके घर तक जो खाना आता है वो कहाँ से start होता है, produce कहाँ से होता है and finally farming किस तरीके से इंडिया में करी जाती है. Food production. Food is the basic necessity of life. We all consume different types of food items which give us energy required to perform work and various life processes. All this food comes from the fields where the farmers grow the food crops and then sell them in the market. अब खाना हर किसी के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, बेसिक नेसेसिटी होती है. खाना अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है और ये खाना भी आपकी टेबल तक जो आता है बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू गो थ्रू करने के बाद आप तक पहुंचता है. Thus, food production is considered as the process of transforming raw materials into edible food products. तो food production का basic definition ये है कि food production में आपका जो raw material होता है उसको edible food products में transform यानी कि change कर दिया जाता है. Edible का मतलब होता है वो चीजें जो आप खा सकते हैं, consume कर सकते हैं. Farming in India. The practice of growing crops, even of vegetables and fruits, is called cultivation. The growing of crops, keeping cattle, hens and ducks and other animals is called farming. तो cultivation और farming में क्या difference होता है? जहाँ पर आपके crops, vegetables या fruits जहाँ पर grow करे जाते हैं, that phenomena is known as cultivation. But जहाँ पे आपकी ये सारी चीजें तो grow होती ही हैं, but साथ ही साथ cattle जैसे आपके cows हो गए, buffaloes हो गई, उनको रखा जाता है, hens को रखा जाता है, ducks को रखा जाता है. This entire process is known as farming. Commercial farming. This type of farming is done on a large scale to sell the produce for profit in the market. अब commercial का मतलब ही business है. तो commercial farming में जो crops grow करे जाते हैं large numbers में, उनको बेचा जाता है ताकि उनको profit मिल पाए. Subsistence farming. In this type of farming, the small farmer grows a crop on a small piece of land for its personal use. अब यहाँ पर subsistence farming में कोई भी एक human being होता है, वो एक छोटे से piece of land पे crops को grow करता है, बेचने के लिए नहीं, अपने personal use के लिए. Third type of farming is mixed farming. Some farmers have fields that are large enough to grow crops as well as rare animals like cows and goats. This is called mixed farming. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है, तो उसमें वो क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो काउज होती हैं, गोट्स होते हैं, कैटल बेसिकली जो होता है उनको भी रख सकते हैं. तो जहाँ पे आपके क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं प्लस कैटल्स को भी रेयर करा जाता है, दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग. Stages of farming. Preparation of soil. To grow crops in a field, the very first step taken by the farmers to prepare the soil. The process of loosening the soil by using plow, wooden or iron and harrow is known as a preparation of the soil. It increases the water holding capacity of the soil. The plowed soil usually gets eroded by wind and water. So the soil is pressed with the help of a soil leveler. फार्मिंग में भी आपके अलग अलग स्टेजेस आते हैं. सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. कैसे प्रिपेयर होता है? उसमें आपके जो अलग अलग सॉइल्स होती हैं, मिट्टी होते हैं, उसको लूजन अप कर दिया जाता है ताकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैन्योर आप डाल रहे हैं, जो भी चीजें आप डाल रहे हैं, वो उसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर पाए. वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की उसको इंक्रीज कर देता है. प्लोइंग के मेथड से ये करा जाता है. सेकेंड स्टेज इज सोइंग ऑफ seeds को बो दिया जाता है. The process of putting the seeds in the soil prepared for cultivation is called sowing. Sowing is done by two methods. The first method is broadcasting, which means scattering seeds with the help of hands. The second method is to use a seed drill for sowing seeds. The farmers prefer the second method for sowing because broadcasting leads to unequal distribution of the seeds in the field. अब आपके सीड्स जो प्रिपेयर्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको बोने के लिए तैयार कर दिया जाता है. ये भी दो तरीके से होता है. एक होता है ब्रॉडकास्टिंग.
ब्रॉडकास्टिंग का जनरल डेफिनेशन भी होता है जब एक ही साथ आप बहुत सारे लोगों को कोई चीज बता देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग चीज की कैसे होती है, एक साथ उसको हाथ से ही फेंक दिया जाता है, नॉर्मली फेंक दिया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है सीड ड्रिल। फार्मर्स सेकंड मेथड को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि सीड ड्रिल से इक्वल डिस्टेंस प्रॉपर स्पेसिंग के साथ जो सीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में आप ऐसे ही अगर आप फेंक देंगे कोई भी चीज तो ना ही डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, ना ही वो मिट्टी में ढंग से जाती है। थर्ड इज वीडिंग। The process of removing unwanted plants which restrict the growth of crops is called weeding. A trowel, khurpi, is used to remove weeds manually from the field. Weedicides are used to control the growth of weeds. अब weeding होता है, weeds आपके unwanted plants होते हैं। आपने नोटिस करा होगा आपके जो crops हैं या फिर trees हैं उसके आसपास छोटे छोटे से पौधे उगने लग जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। ये अनवांटेड प्लांट्स ही वीडिंग होता है, इनको रिमूव करा जाता है खुरपी से ताकि प्लांट्स जो एक्चुअल क्रॉप्स जो हैं, यूजफुल क्रॉप्स जो हैं, उनकी ग्रोथ हैम्पर ना हो। नेक्स्ट इज इरिगेशन। Irrigation is done at regular intervals with the help of tube wells, canals, tanks and sprinklers. Tube wells and canals are common in North India. Tank irrigation is usually practiced in South India. In the western parts, sprinkle irrigation is common, which involves spraying of water on standing crops. फिर आता है irrigation. Irrigation में प्रॉपर इंटरवल्स के बाद इन क्रॉप्स पे पानी डाला जाता है। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं। स्प्रिंकलर्स ज़्यादातर आपके अलग अलग लोकेशंस में जैसे वेस्टर्न पार्ट्स हो गया वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है और क्रॉप्स में इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। When crops start growing, they need to be protected from pests, insects and animals. Certain pesticides and insecticides are sprayed in the fields with the help of sprayers. फिर आते हैं आपके manures, fertilizers. जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं जो सॉइल से उनको कंप्लीटली नहीं मिल पाते हैं, तब आपके मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को डाल दिया जाता है। इसे हिंदी में खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट्स क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। लेट्स आंसर। What are the different types of irrigation? इरिगेशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप्स होते हैं, इनका आंसर आपको खुद से देना है। हार्वेस्टिंग। When the crops becomes mature, it has to be cut close to the ground. The process of cutting a mature crop plant is called harvesting. अब plants आपके सारी चीजें हो चुकी हैं, अलग अलग टाइप के steps. अब plants are ready to be cut off, यानी कि उनको यूज अब आप कर सकते हैं। तो ये जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है जहाँ पे रूट्स होते हैं, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उनको कट कर दिया जाता है जैसे ही आपके क्रॉप्स मच्योर हो जाते हैं। It is done either by sickles or machines called harvesters. दो तरीके होते हैं, या तो sickles हाथ से या तो काट दिया जाएगा एक इक्विपमेंट के थ्रू जिसका नाम सिकल होता है, और एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उससे भी इनको काट के अलग रख दिया जाता है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। The harvested crops are threshed with the help of threshing machines, manually or by using animals like bullocks and camels. Threshing is the process of beating cereal plants in order to separate the seeds or grains from the straw. Although once done by hand using a flail on a threshing floor, this tiring task is now mostly done by machines. फिर होता है threshing, या तो ये bullocks या camels के थ्रू कर दिया जाता है। इसमें जो सीरियल प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को, ग्रेन्स को स्ट्रॉज से सेपरेट कर दिया जाता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है प्लांट का। या तो ये हाथ से भी करा जा सकता है, बट यूजुअली आजकल क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में ये वेजिटेशन होती है तो इनको मशीन से करा जाता है। नेक्स्ट इज विनोइंग। The process of separating grain from chaff is called winnowing. Threshed grains are tossed into air to separate them from chaff. अब आता है आपका chaffing को अलग कर दिया जाता है। ग्रेन्स के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सूखे सूखे से पार्ट्स होते हैं, ड्राइड पार्ट्स होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा या तो हाथ से कर दिया जाता है या फिर उसको टॉस करा जाता है एक इक्विपमेंट से, तो उसमें जितना भी ये ड्राइड पार्ट होता है वो chaff अलग हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज।
Dried grains are stored in containers or sacks. Large containers are used for storing grains called silos. Fruits and vegetables are stored in cold storage. अब आता है, सारी चीजें हो चुकी हैं, रिमूव हो चुका है, कट डाउन हो चुका है, विनोइंग हो चुकी है, थ्रेशिंग हो चुकी है. अब फाइनल पार्ट आता है जो आपका वेजिटेशन है उसको स्टोर करने के लिए और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स या फिर रॉडेंट्स से बचाने के लिए. तो ड्राइड सैक्स होते हैं, लार्ज कंटेनर्स होते हैं जिनको सिलोस कहा जाता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है. एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि आप इनको ओपन में रखेंगे तो खराब हो सकते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज, ठंडी जगह जो होती है वहां पर इनको स्टोर किया जाता है. लास्ट प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन. All the food items are loaded in trucks or trolleys and then sold in wholesale markets. Retailers buy food items from the wholesale markets from where we buy items. And finally इनको transport कर दिया जाता है, wholesale market में इनको sell करा जाता है, वहां से retailers के पास जाता है और retailers से वो हमें बेच दिया जाता है. Activity. Visit a village with your friends. Observe the different tools used by farmers to prepare the field and to harvest the crop. अपने फ्रेंड या अपने पेरेंट्स के साथ किसी गांव में जाइए जहां पे फार्मिंग होती है और देखिए किस किस टाइप के अलग अलग इक्विपमेंट्स या टूल्स का यूज करा जाता है फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए. लेट्स नो. Farmers use manures like cow dung, leaf manure or compost and chemical fertilizers such as urea to make the soil rich in minerals. It is better to use manures instead of chemical fertilizers. Manure helps to build and maintain soil fertility. The use of manure is environment friendly as it does not cause chemical pollution of water. अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है, बट बेटर कौन सा होता है? मैन्योर, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आपकी इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं और अगर आप उसको छिड़का देंगे तो एक टाइप का जो आपका क्रॉप है वो तो अच्छा निकल आएगा, बट उसके बाद आपकी जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो सकती है. बट मैन्योर, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो ज्यादातर फार्मर्स मैन्योर को ही प्रेफर करते हैं. की फ्रेजेस. Food production. Process of transforming raw materials into edible food products. Cultivation, practice of growing crops, even of vegetables and fruits. Farming, growing of crops, keeping cattle, hens, ducks and other animals. Weeding, process of removing unwanted plants which restrict the growth of crops. Harvesting, process of cutting mature crop plants. And winnowing, process of separating grain from chaff. फूड प्रोडक्शन आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है जहां पे रॉ मटेरियल को एडिबल फूड आइटम्स में कन्वर्ट किया जाता है. कल्टीवेशन में आपकी अलग अलग क्रॉप्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रो करा जाता है. फार्मिंग में कल्टीवेशन तो होती है, अलोंग साइड आपकी कैटल्स को भी रेयर करा जाता है. वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है. एंड देन विनोइंग इज अ प्रोसेस वेयर इन ग्रेन्स को शैफ से सेपरेट किया जाता है. लेट्स सम अप. Different types of farming practiced in India are subsistence farming, commercial farming and mixed farming. Agricultural practices applied to grow crops are preparation of soil, sowing the seeds, weeding, irrigation, application of manure, fertilizers and pesticides, harvesting, threshing, winnowing, storage and transportation of food items. Irrigation means watering plants by means other than rainfall. Tube wells, canals, टैंक्स एंड स्प्रिंकलर्स आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन. 3 टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस जो इंडिया में करी जाती है. इट इज सब्सिस्टेंस, जहां पे अपने पर्सनल यूज के लिए क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है. कमर्शियल फार्मिंग में बेचने के लिए करा जाता है. एंड देन मिक्स्ड फार्मिंग आती है जहां पे बहुत ह्यूज लैंड होता है, फार्मिंग भी हो सकती है प्लस कैटल्स को रेयर भी किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.